Hello everyone, welcome back to JC Academy. I'm your Paper 1 educator, Radna Tagotra. I have cleared my JRF with an All India rank of 23 in December 2024. Today we are going to start PYQ series of new unit which is ICT, that is Information and Communication Technology, and this is the part 1. Now, in order to join the Telegram group for paper 1, you can either scan the QR code given on your screen or you can join it through the invite link. Let's begin our class. Now, question number 1. It says that two statements are given, statement 1 and statement 2. In the light of the above statements, choose the correct answer. हमारा पहला statement है, Twitter is an example of Web 2.2 application. Second statement says Web 2.0 refers to static text based information websites. देखिए इसका जो आंसर है ना दैट इज ऑप्शन नंबर सी. जो हमारा स्टेटमेंट 1 है ना कि ट्विटर इज एन एग्जांपल ऑफ वेब 2.0 एप्लीकेशन, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वेब 2.0 रेफर्स टू टेक्स्ट स्टैटिक टेक्स्ट, ये एक गलत स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. Question 2. It says, what is the component of Web 3.0 that describes things in a way that computers can understand? ठीक है, उस तरीके से वो चीजें बताता है जो कंप्यूटर को भी समझ आए. That is semantic web. So, option number D is the correct answer. और ये सब PYQs हैं. ठीक है. Question number 3. कुछ स्टेटमेंट्स दिए और हमें करेक्ट ऑप्शंस बताने. स्टेटमेंट 1 सेज Web 2.0 is a simple static website without any interaction with user. Statement 2 that Web 2.0 it brings people closer with the information using the machines. Web 3.0 it brings machines closer together using information. अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि Web 2.0 is not a static website, यानी ये हमारी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना था कि कौन से जो हमारे स्टेटमेंट्स है वो एक्यूरेट है. सो ऑप्शन बी और हमारे ऑप्शन सी, यानी ये वाला ऑप्शन बी एंड सी, यानी हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन 4. Which of the following best describes Web 3.0? आंसर ऑप्शन बी. ठीक है. It is based on the intelligent web where applications use natural language processing. Option number B. Question number 5. Which of the following best describes Web 2.0? Static websites नहीं, intelligent नहीं, hypertext markup language नहीं, social media and user content. So option number C हमारा सही आंसर हो जाएगा. Question 6. Web 3.0 is an interactive web and its greatest virtue is the democratization of content production. ठीक है. Apple's Siri, which can summarize large amounts of information into knowledge and useful actions for people, is an example of Web 3.0 application. ये हमारा एप्पल सीरी, हाँ ये हमारा सही स्टेटमेंट है, लेकिन वेब 3.0 इज एन इंटरैक्टिव वेब एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन, ये हमारा गलत है, यानी स्टेटमेंट 1 नहीं सॉरी वेब बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट इसमें एक गड़बड़ हो गई. एक मिनट. यहाँ पे स्टेटमेंट 1 फॉल्स आएगा, इसका आंसर डी होना चाहिए. स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. हाँ ठीक है. सो ऑप्शन होगा हमारा डी वाला. Question number 7 says, which web version focuses on user-generated content, interaction, and sharing through social media? So it is Web 2.0. Answer B.
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 7 था। क्वेश्चन 8, what is the primary goal of Web 3 as compared to its predecessors Web 1 and Web 2? So answer is option number C, which is decentralization and user control. अब देखिए, ये जितने भी हमने यहाँ तक एक क्वेश्चंस किए हैं ना, ये हमारा जनरेशंस ऑफ वेब है, एक टॉपिक जो हम आईसीटी में पढ़ते हैं, जनरेशंस ऑफ वेब। उसमें हमारा वेब 1.0, ठीक है, 2.0 और 3.0 आता है। ये जितने भी क्वेश्चंस थे ना जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, आई हैव ट्राइड टू कंपाइल देम एट वन प्लेस, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या पैटर्न्स आते हैं। ठीक है, एक मैंने आपको समरी टेबल बना दिया है। ठीक है, दिस इज द समरी टेबल, तो आप इसको एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, again statements are given. First statement says wireless Wi-Fi networks are less secure than hardwired systems. ये correct statement है। Second statement है a series of digital media files that are released at regular intervals and downloaded to users computer are known as podcast. बिल्कुल, these media files are stored and maintained centrally. ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट कैन बी कनेक्टेड साइमल्टेनियसली टू अ ब्लूटूथ नेटवर्क? एक ही टाइम पर आप कितने ब्लूटूथ नेटवर्क डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हैं? दैट इज 7। ठीक है, क्वेश्चन 11, which technology is primarily associated with cryptocurrency and maintains a secure and decentralized ledger of transactions? Blockchain. काफी सुना होगा आपने blockchain technology. So it is used for cryptocurrency. Question number 12, in big data, the term velocity, it refers to the speed of data generation. जो हमारा बिग डेटा है ना, उसमें हमारे 6 V's आते हैं। ठीक है, वो 6 V's मैंने आपको लिख के दे दिए हैं। दैट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब साइज ऑफ द डेटा, वेलोसिटी, स्पीड एट विच डेटा इज जनरेटेड, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, वेलोसिटी, सो स्पीड ऑफ द डेटा जनरेशन। देन वेरिएबिलिटी इज द इनकंसिस्टेंसी इन डेटा फ्लो। ठीक है, कुछ हमारे इरेगुलर पैटर्न्स आ गए या अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशंस आ जाती है हमारी जो डेटा में जब हम स्टोर करते हैं, तो दैट इज वेरिएबिलिटी। वैरायटी, ठीक है, वैरायटी का मतलब अलग अलग टाइप के। ठीक है, कुछ हमारे स्ट्रक्चर्ड डेटा है, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड है, कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड है। देन वेरासिटी, वेरासिटी का मतलब ट्रस्टवर्दीनेस एंड क्वालिटी ऑफ डेटा। एंड द लास्ट इज वैल्यू, वैल्यू का मतलब पोटेंशियल इनसाइट्स एंड वैल्यू दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बिग डेटा। सो दीज आर द 6 V's। ठीक है, ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्या पता नेक्स्ट टाइम ये आपको मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में मिल जाए, या वेलोसिटी की जगह वो कोई और टर्म दे दे। ठीक है, कोई और V दे दे आपको, तो वो आपको पता होना चाहिए। This is our part 2 of the PYQ series for the unit of ICT, which is Information and Communication Technology. Now, starting with the question number 1, it says the abbreviation S-MIME implies. देखिए, आपको आईसीटी में एब्रीवेशंस बहुत ज्यादा आती हैं। ठीक है, या तो कभी वो मैच ऑफ द फॉलोइंग के फॉर्म्स में आ जाती हैं, करेक्ट इनकरेक्ट के फॉर्म में आ जाती है, या फिर जैसे ये सिंपल उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि ये जो S-MIME है ये एब्रीवेशन कौन सी है इसके लिए, तो आपको हर तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन का पता होना चाहिए। सो S-MIME, देखिए अगर तो आपको पता है, ठीक है, आप देखते ही आंसर गेस कर लेंगे, बट अगर आपको नहीं पता है तो इट विल बी difficult for you to guess which is the correct option. So इसका जो हमारा correct option है that is option number D, which is secure multi-purpose internet mail extensions. ठीक है, secure multi-purpose internet mail extensions. This is an email security protocol, S-MIME.
ये कुछ अदर प्रोटोकॉल्स हैं विच आर यूज्ड फॉर ईमेल, ठीक है, मैंने लिस्ट कर दिए हैं, आप प्लीज एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। Now, moving on to question number second, it states which protocol is responsible for assigning IP addresses automatically to devices on a network, facilitating their connection and communication। ठीक है, डिवाइसेस को जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है ताकि वो कनेक्ट हो सके एक दूसरे के साथ और कम्युनिकेट कर सके, एक्सचेंज हो सके, ठीक है, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज DHCP, विच इज ऑप्शन नंबर डी। So DHCP is Dynamic Host Configuration Protocol. I would suggest कि आप जब ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक पेन पेपर लेके बैठिए और या फिर अगर आपके पास नोटबुक है तो कोई एक पेज रख लीजिए जहाँ पे आप ये सारी एब्रीवेशंस ना एक ही जगह लिखते रहे। अलग अलग जगह लिखेंगे ना तो आपको बहुत दिक्कत होगी उसको लास्ट मिनट रिवाइज करने में, और एक ही जगह पे होगा तो आपने बस एक बार गो थ्रू करना है ताकि अगर कुछ भी उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा भी हिंट मिल जाए तो आप एक एजुकेटेड गेस कर पाए। Question number 3 says, which pair of protocols are primarily used for email transmission and management over the internet? ईमेल की ट्रांसमिशन और मैनेजमेंट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है? द ऑप्शन इज अगेन डी, विच इज SMTP एंड IMAP। ठीक है, SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और IMAP है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, सो ये दोनों जो प्रोटोकॉल्स हैं ये ईमेल के मैनेजमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड टुगेदर फॉर ईमेल रिट्रीवल फ्रॉम द सर्वर। सर्वर से ईमेल को रिट्रीव करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज IMAP एंड POP3। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है वैसे। SMTP इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट इज अ स्टैंडर्ड मेथड for sending the emails over the internet. So SMTP is for sending emails. Alongside SMTP, there are two main protocols to access, which is POP3, which is Post Office Protocol. ठीक है, ये भी आप अपनी जो फुल फॉर्म है अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, एंड IMAP, which is Internet Mail Access Protocol. So IMAP क्या करता है? To manage and retrieve emails from the mail server, and IMAP and POP3, they are the two main protocols for email access. ठीक है, now question number 5, which of the following protocols is known for establishing a direct connection between two nodes in a network to facilitate data communication? दो नोड्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन बिठाने के लिए, डायरेक्ट कनेक्शन मेंटेन करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? विच इज PPP, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो बाकी के हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, उनके फुल फॉर्म्स लिख दिए और उनके फंक्शंस लिख दिए, तो आप प्लीज इसे भी एक बार रीड कर लीजिएगा। Question number 6. In the context of cybersecurity, which of the following is a risk of phishing for target users? Phishing का risk क्या होता है? ठीक है, हमें वो बताना है in terms of cyber security. Connectivity fault, data deletion, fraudulent activity, power reduction. So the answer is fraudulent activity. ठीक है, फिशिंग इज यूज्ड फॉर फ्रॉड्स ओनली। ठीक है, वो आपको ऐसे दिखाते हैं कि वो एक लेजिटिमेट वेबसाइट है या लेजिटिमेट पर्सन है, ठीक है, लेकिन इन एक्चुअल कि वो एक फ्रॉड होता है। तो जो हमारा फिशिंग है तो वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन
independent malicious program that propagates itself across a network by exploiting security flaws in a widely used service. देखिए, ट्रोजन हॉर्स और लॉजिक बॉम्ब तो नहीं है, ठीक है, इन्होंने लिखा है प्रोपोगेट्स इटसेल्फ, तो इट कैन बी ईदर वॉर्म और वायरस, बट मैम हमें कैसे पता चलेगा कि वॉर्म है या वायरस है? दिस इज द कीवर्ड, इंडिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट होता है ना, जो इंडिपेंडेंटली प्रोपोगेट होता है, दैट इज अ वॉर्म, ठीक है। वायरस it needs a host, to propagate itself। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। और जो वॉर्म है, वॉर्म इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Question 8 says, in email communication, which of the following correctly represents the use of BCC? BCC is blind carbon copy. So BCC used to send a copy of the email to additional recipients whose addresses are visible to all other? No. जब लिखा ही blind है तो वो visible कैसे होगा? Then it allows primary recipient to receive a copy without notifying other recipients? No. Primary recipient तो नहीं होता। Now BCC is used to send a copy of the email to additional recipients without revealing their email addresses to other recipients. हो सकता है BCC recipients can see the email? नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर C. So BCC is used to send a copy of the email to additional recipients without revealing their email addresses to other recipients. देखिए, हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं ईमेल में, टू, सीसी एंड बीसीसी। टू, आप फॉर एग्जांपल आपने लिखा XYZ, सीसी में आ गया AB एंड CD, और बीसीसी में आ गया EFG, ठीक है, JKL, QRS। अब देखिए, टू आप जिसको भेज रहे हैं, ठीक है, सीसी, AB और CD को पता है कि इन दोनों को भी मेल गई है, AB को भी पता है कि CD के पास मेल गई है, और CD को भी पता है कि AB के पास मेल गई है, बिकॉज दिस इज कार्बन कॉपी। नाउ ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जो ये तीनों हैं, EFG, JKL and QRS, they all are unaware of each other, ठीक है, unaware of each other, इन्हें नहीं पता कि इनके पास भी मेल गई है। तभी ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है? विदाउट रिवीलिंग द ईमेल एड्रेसेस टू अदर रेसिपिएंट्स, ब्लाइंड, किसी को नहीं पता। सो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, it is similar to CC, but the email addresses are hidden from all other recipients. 2 और CC वालों को भी नहीं पता कि BCC में कौन कौन है, और जो BCC वाले हैं उन्हें आपस में भी नहीं पता कि किस किस को ये ईमेल भेजा गया है। Now, question number 9. Arrange the following social media platforms to earliest to latest. ठीक है, जो सबसे पहले आया था earliest to latest, आपको वो अरेंज करना है, ठीक है। सो सबसे पहले आया था हमारा फेसबुक, देन ट्विटर, देन व्हाट्सएप, देन इंस्टाग्राम, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, विच इज DCBA। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ईयर्स भी लिख दिए कि कौन सा जो प्लेटफॉर्म था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो कब लॉन्च हुआ था, ये आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यूबिक्विटस कंप्यूटिंग मीन्स capability of computing everywhere, creating creative computing ideas, designing layouts for interactive computing, planning and designing computational products. So ubiquitous computing का मतलब होता है capability of computing everywhere. Option A. Now, ubiquitous computing means computing that is present everywhere and integrated seamlessly into our daily life.
ठीक है. सो इट रेफर्स टू अ वर्ल्ड where computers and sensors are embedded in everyday objects and environments. So technology works in the background. For example, हमारे स्मार्ट होम्स, हमारे वेरेबल डिवाइसेस जो हम स्मार्ट वॉचेस यूज करते हैं, ठीक है, हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि अगर आप बाहर है कहीं और आपके घर का एसी ऑन रह गया है, ठीक है, तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं बाहर होते हुए भी, आपको घर वापस आने की जरूरत नहीं है. सो ये सब चीजें क्या है, यूबिक्विटस कंप्यूटिंग. क्वेश्चन 11. Which of the following are characteristics of computer mediated mass communication? एक तो मास कम्युनिकेशन है, बहुत सारे लोगों को जा रहा है, लेकिन कंप्यूटर मीडिएटेड है, थ्रू कंप्यूटर. तो आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं. वन वे कम्युनिकेशन, मासिफिकेशन, इंटरएक्टिविटी, डीमासिफिकेशन, एसिंक्रोनिटी. इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है. अब देखिए, इंटरएक्टिविटी, it is a two-way exchange between sender and receiver. Demassification यानी ability to target or customize messages to individuals. कंप्यूटर के थ्रू है तो ऑब्वियसली कस्टमाइज हम कर सकते हैं. देन एसिंक्रोनिटी, दैट कम्युनिकेशन डजंट हैव टू अकर एट द सेम टाइम. जरूरी नहीं है कि अगर मैंने आज बहुत सारे लोगों को कुछ ईमेल भेजा है तो उसी टाइम पे वो रिप्लाई करेंगे, जो अवेलेबल होंगे वो उस टाइम पे कर देंगे, कुछ थोड़ी देर के बाद करेंगे. ठीक है, तो दैट इज एसिंक्रोनिटी. सो ऑप्शन नंबर 3 विच इज सी डी ई. सो दीज ऑल, इंटरएक्टिविटी, डीमासिफिकेशन, asynchronity, they are the characteristics of computer mediated mass communication. Question 12. Choose the wrong statement. हमें गलत statement choose करना है. OLED stands for organic light emitting diode. ठीक है. FASTag is an example of RFID. ठीक है. CAD stands for computer algorithm of design. नहीं मैम, गलत है. RFID stands for Rapid Frequency Identification. मैम गलत है. अब ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए अगेन आई वुड से कि आपको फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए, तभी आप गेस कर पाएंगे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. देखिए, CAD इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और यहाँ पे क्या दिया हुआ था, कंप्यूटर एल्गोरिदम ऑफ डिजाइन. सो गलत है. RFID रैपिड फ्रीक्वेंसी नहीं होता, इट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन. इसलिए जो हमारे स्टेटमेंट्स सी और डी हैं वो रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं. क्वेश्चन 13. चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट्स अगेन. अब पता है क्या होता है, देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपने ढंग से नहीं पढ़ा, आपने ये वाली लाइन नहीं पढ़ी, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपने सिर्फ ऑप्शंस पढ़े और आपने पढ़ी चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. तो आप क्या करेंगे कि जो इसमें से दो सही ऑप्शंस होंगे ना, आप वो टिक कराएंगे. एक्चुअली में पूछा गया है कि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट्स बतानी है, बट बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, ठीक है, या बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक, आपने ये पढ़ा ही नहीं कि रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, आपने सिर्फ पढ़ा चूज द करेक्ट आंसर. तो आप जो सही स्टेटमेंट्स है वो करके आएंगे. ठीक है, तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, हर एक वर्ड तो पढ़ना ही पढ़ना है, एंड तक पढ़ना है, बट पूरा क्वेश्चन पढ़ना है. ठीक है, नाउ हमें रॉन्ग स्टेटमेंट्स बतानी है. CD इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस, करेक्ट. फ्लॉपी इज एन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक डिवाइस, अगेन करेक्ट. पेन ड्राइव इज एन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक स्टेट डिवाइस, नो, गलत. मेमोरी कार्ड इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टल स्टेट डिवाइस, गलत. सबसे पहली बात कि क्रिस्टल स्टेट जैसी तो कोई चीज होती नहीं है, एंड सेकेंड कि ये दोनों दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइस. ठीक है, दे बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइस, इसलिए हमारा सी और डी विच इज ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे इनकरेक्ट हैं. ठीक है, सो पेन ड्राइव या USB फ्लैश ड्राइव्स, दे यूज फ्लैश मेमोरी विच इज अ सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी एंड नॉट अ मैग्नेटिक, and like pen drives, memory cards, they also use flash memory which is a solid state technology. तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन 14. द फुल फॉर्म ऑफ MS-DOS, बहुत इजी है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, सो इट इज अ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम विच वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड इट वॉज वाइडली यूज्ड बिफोर विंडोज बिकेम डोमिनेंट. दिस इज पार्ट 3 of the PYQ series for ICT. I hope जो पहले के 2 पार्ट्स हैं वो आपने अच्छे से देखे होंगे और उनके नोट्स प्रिपेयर किए होंगे. देखिए,
हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, the first question is match the following. We have given 4 statements and 4 concepts, that is social media, website, email and SMS. अब देखिए, method to send long messages with attachments, that is email. C का 1, बोलो एक ही में मिल गया. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन बी. ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं. सोशल मीडिया, इट इज अ मेटा प्लेटफॉर्म. देन वी हैव वेबसाइट. वेबसाइट क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ पेजेस. एंड एसएमएस क्या है? मेथड टू सेंड short messages from one mobile to another. Question number 2. Full form of ARPANET, that is Advanced Research Project Agency Network. Answer number A. ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक फुल फॉर्म है ARPANET की. Question number 3. Choose the correct statements. MS Word saves the files in .doc format. SQL Server is a local network server. MATLAB is mathematical software and Bootstrap is an example of entertainment. मैम ये पता है Bootstrap entertainment software तो नहीं है, utility है, तो D हटा दीजिए. D हट गया तो ये हमारे 2 ऑप्शंस खत्म हो गए. अब A और B या A और C? मैम C तो होता ही है, MATLAB is a mathematical software, सो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर B, दैट इज A and C. ठीक है, अगर आपको जो पता है ना, आपको अगर पता है कि वो सही है तो आप वो देख लीजिए. अगर आपको पता है, जैसे मुझे पता था कि बूटस्ट्रैप लोडर एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, मैंने डी हटा दिया. जैसे ही मैं डी एलिमिनेट करूंगी, आई एम लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस ओनली, सो यू हैव टू प्ले विद द ऑप्शंस. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 4, अगेन आपको सिस्टम दिया हुआ है और ईयर और टाइम दिया हुआ है. मार्क 1 कंप्यूटर 1973 to 44. ठीक है. Then IBM 701 1952, IBM 650 1953 and UNIVAC is 1951. So option number A is the correct answer. ये आपको पता है हमारा वो जो है ना generations of computer, वहां से बना ये क्वेश्चन, क्योंकि उसके जो हमारे एग्जाम्पल है ना जनरेशन 1 जनरेशन 2, उसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं ये उसके बेसिस पे बना है. क्वेश्चन 5, इट सेज which of the following is the correct order of increasing access time. increasing मतलब access time बढ़ना, कम से ज्यादा. मैग्नेटिक टेप, रैम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, रजिस्टर्स. देखिए जो हमारा सीपीयू है, सीपीयू के सबसे पास होता है रजिस्टर्स, यानी रजिस्टर्स को सबसे कम टाइम लगेगा, यानी हमारा रजिस्टर ई सबसे पहले आएगा एंड वो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं. रजिस्टर्स के बाद हमारा आता है कैश, फिर आता है रैम बी. ठीक है, फिर आता है हमारा हार्ड डिस्क और फिर आता है हमारा मैग्नेटिक टेप. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statements are correct with reference to cyber attacks? Malware is a malicious software designed to cause damage to a single computer, a server or a computer network. Correct statement है. Types of malware, it includes virus, worm, Trojan horses, ransom and spyware. Correct. Pegasus is a malicious software classified as ransomware. गलत. India is not a signatory to Budapest Convention or cybercrime. Correct. So C निकाल दीजिए, ऑप्शन नंबर A, that is only A, B and D are correct. ठीक है. Pegasus हमारा spyware है and it is not a ransomware. It is used for surveillance. ठीक है, निगरानी रखने के लिए, जो हम निगरानी रखते हैं, निगरानी रखने के काम आता है हमारा Pegasus. It is a spyware. Question 7. Which of the following is used in second generation of computer?
सबसे इजी क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, देखिए फर्स्ट जनरेशन में हमारे यूज हुए थे वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में हमारे हुए थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ में हुए थे हमारे VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एंड फिफ्थ एंड बियॉन्ड ULSI, दैट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 8 अगेन, मैच द फॉलोइंग, यूनिक्स, MS-DOS, एंड्रॉइड एंड यूटिलिटी। एंड्रॉइड हमें पता है यूटिलिटी है, सॉरी मोबाइल डिवाइस है, एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस। सी का सेकेंड दो जगह दिया है, चलो एटलीस्ट दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए। ठीक है, यूनिक्स, यूनिक्स हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ए का फोर्थ। यूटिलिटी प्रोग्राम्स, दे असिस्ट यूजर्स टू सिस्टम मेंटेनेंस टास्क, और हमारा MS-DOS इज अ सिंगल यूजर। सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनिक्स हमारा मल्टी यूजर है और MS-DOS हमारा सिंगल यूजर है। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमें एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, हमें इसमें से बताना है, ये जो पार्ट है www.ncrt.nic.in, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है, ये पूरा जो है ना, देखो ये पूरा जो गिवन है ये हमारा पूरा URL है। इसमें जो www है ना, ये हमारा सब डोमेन है। ओनली दिस www, वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना www, ये हमारा सब डोमेन है। लेकिन ये www से लेके .in तक ये हमारा डोमेन नेम आता है। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हमें बताने ट्रू स्टेटमेंट्स। फुल ड्यूप्लेक्स इज बाई डायरेक्शनल, बिल्कुल। FM रेडियो इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, बिल्कुल। वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ फुल ड्यूप्लेक्स, गलत। In half duplex, both devices can send and receive data at the same time, गलत। Landline is an example of half duplex, गलत। So A and B, option number C हमारा correct हो जाएगा। Which of the following is correct? Physical address of a computer, ठीक है, इसमें जो हमारा correct option है that is option number D, और ये हमारा question number 11 है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट इसलिए है क्योंकि ये मैक एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। देखिए फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है क्योंकि 4 पेयर्स हैं जबकि होने चाहिए 6 पेयर्स। ठीक है, इसमें 3 पेयर्स हैं इसलिए गलत है। फोर्थ ऑप्शन 7 पेयर्स गलत है, जो लास्ट ऑप्शन है उसमें 6 पेयर्स है, और फॉर्मेट भी करेक्ट है। ठीक है, सो ये हमारे मैक एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। देन क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 110 बाइनरी दिया है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 2⁻0, 2⁻1 एंड 2⁻2, ये कट हो जाएगा। ठीक है, 2⁻1 इंटू 1 इज 1, सॉरी 2⁻1 इंटू 1 इज 2, एंड ये 4 + 2 6, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूं। ठीक है, ये आप खुद करेंगे और फिर आप चेक करेंगे कि जो आंसर गिवन है वो सही है या नहीं है। नाउ दिस इज आवर पार्ट 4 ऑफ द PYQ सीरीज फॉर ICT। आई होप जो पहले के 3 पार्ट्स हैं वो आपने देखे होंगे और आपने अच्छे से उसके नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1,
It says choose the right statement. IoT term was first used by Ashton in context to supply chain management. Bluetooth 4.0 is working on the frequency range of 2.4 megahertz. Gyroscope is normally related to the motion sensors. IPv6 is related to coding of vaccines protocol. GSM is a sequence of mechanics. देखिए हमें राइट टर्म ढूंढनी है. देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लूटूथ गीगाहर्ट्ज पे काम करता है, मेगाहर्ट्ज पे काम नहीं करता. ये हमारा इनकरेक्ट है. IPv6 ये हमारा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इसका कोडिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, ये भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है. ठीक है, हमें राइट स्टेटमेंट्स बताने हैं तो A एंड C यानी ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, देखिए Bluetooth it uses 2.4 gigahertz ISM band. IPv it is an internet protocol version and GSM stands for Global System for Mobile Communications. आपको ICT में बहुत सारी एब्रीवेशंस मिलेंगी, मैंने आपको पहले भी बोला है और मैं बार बार बोलूंगी कि एक जगह पे सारे फुल फॉर्म्स लिखिएगा, इधर उधर मत लिखिएगा, लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सीक्वेंस पूछा है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यूनिट. मैम हमें लार्जेस्ट पता है कि ये हमारा लार्जेस्ट है, बट मैम सब पे ई पहले दिया है. ठीक है, उसके बाद हमारा सबसे स्मॉलेस्ट आता है पीको. पीको ठीक है, बी 3 जगह दिया है. ई के बाद आएगा डी, नहीं थर्ड, ई के बाद आएगा ए, मिली. सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज EADCB. EADCB. ठीक है, सो सेकेंड्स, देन मिली सेकेंड इज 1000 ऑफ अ सेकेंड. ठीक है, 10⁻³ मतलब 1/1000 सेकेंड. ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब जब ये ऊपर जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10⁻³ और जब हमें इसे सिंपल टर्म्स में लिखना है तो हम इसको 10⁻³ लिखते हैं. ठीक है, देन वी हैव मिली सेकेंड्स, उसके बाद माइक्रो, नैनो एंड देन पीको. क्वेश्चन 3 चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. ये प्लीज क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िए, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करनी है, गलत स्टेटमेंट कौन सी है. देखिए यहाँ पे सारे इन्होंने फुल फॉर्म्स दिए हैं, JPEG, FTP, GUI एंड FAT. अगर आपको फुल फॉर्म्स पता है तो आपको हार्डली 5 to 6 सेकेंड्स लगेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर पता करने में, और अगर नहीं पता है तो फिर आप गेस करके ही आएंगे. सो JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सचेंज जनरल, नहीं. FTP इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, करेक्ट. GUI इज जनरल यूजर इंटरफेस, नो. FAT इज फाइल एलोकेशन टेबल, यस. हमें रॉन्ग स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है तो A एंड C, A और C यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है. सो JPEG इज जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप एंड GUI इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. क्वेश्चन 4 a standard address format that constitutes a reference to an internet resource. सबसे इजी क्वेश्चन, URL. ठीक है, मैं आपको फटाफट से अब ना इनके फुल फॉर्म्स लिख के दे देती हूँ, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा. HTTP इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ISP is Internet Service Provider. FTP is, अभी पीछे किया था, पीछे क्वेश्चन में था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. एंड URL is यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ठीक है, नाउ क्वेश्चन 5 सिस्को
is a hockey manufacturer. VLC is visible light communication. SDN is system of digital network. HyperCat is an open JSON based catalog format and SOC is sequence of choice. हमें right statements ढूंढने हैं, ठीक है? So VLC stands for visible light communication, correct है, and HyperCat is an open JSON based catalog format, ये सही है. So हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है. सो सिस्को एक हॉकी मैन्युफैक्चरर है नहीं, इट इज टेलीकम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग कंपनी. SDN, ये देखिए एक और फुल फॉर्म आ गई, स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग and it refers to a network architecture approach that enables the network to be intelligently and centrally controlled. And SOC यहाँ पे शायद sequence of choice दिया था, बट उसका मतलब होता है सिस्टम ऑन चिप, यानी एक सिंगल चिप में आपने कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के सारे पार्ट्स को कंबाइन कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है. सो इट इंटीग्रेट्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इनटू अ सिंगल चिप. दैट इज SOC. Question number 6. Match the following. CSIC processors, ये types दिए processors के और ये characteristics हैं, ठीक है. CSIC, RISC, EPIC and multi-core processors. अगर तो आपको इनका फुल फॉर्म का थोड़ा बहुत भी आइडिया था या आपने पढ़ा हुआ था तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये पूरा क्वेश्चन आप एजुकेटेड गेस में ही करके आएंगे. देखिए सी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, EPIC है ना, इसमें जो P है इट स्टैंड्स फॉर पैरेलल, तो C का सेकंड कर दीजिए. जैसे आप C का सेकंड करेंगे आपके 3 ऑप्शंस कट हो गए एंड यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 1, ठीक है. ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. CSICs कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, instructions are executed in multiple cycles, ठीक है. RISC is reduced instruction set computer. यहाँ पे जो instructions होते हैं, instructions में short में लिख रही हूँ, instructions are executed in सिंगल साइकिल, ठीक है. एंड EPICs एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग, यानी यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल. तो जो हमारा CISC है, these possess many processing features, क्योंकि मल्टीपल साइकिल्स में वो एग्जीक्यूट होते हैं इंस्ट्रक्शंस. RISC ये सिंगल साइकिल में होता है, इसलिए जो इसके इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं वो स्मॉल होता है. EPIC मैंने आपको बताया पैरेलल में. एंड मल्टी कोर प्रोसेसर्स दैट ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल ओवरऑल असाइनमेंट्स ऑफ द टास्क. सो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. Question 7. In each communicating device, it is connected with other device in the computing network. Star, mesh, bus या ring. So it is a mesh topology. ठीक है. स्टार ऐसे होता है, ठीक है. बस ऐसे होती है, यहाँ पे सिंगल वायर से कनेक्टेड होते हैं सब, ठीक है. एंड रिंग टोपोलॉजी ऐसे होती है, रिंग या सर्कुलर बोल दीजिए, ऐसे करके कनेक्ट होता है. सो ये देखिए हर एक कंप्यूटर हर एक के साथ कनेक्टेड है. कोई भी कंप्यूटर कनेक्टेड मतलब वो नॉट कनेक्टेड नहीं है, ठीक है. हर एक कंप्यूटर हर एक डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है. सो इट इज अ मेश टोपोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 8. टिम बर्नर्स-ली, सबने पढ़ा है वर्ल्ड वाइड वेब, ए का 4th. सो हमारा ऑप्शन 1 और 2 एलिमिनेट हो गया. फ्रेड कोहेन नहीं पता, चार्ल्स बैबेज थोड़ा डाउट है, जॉन वॉन न्यूमैन, हाँ इसने क्या दिया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डी का 1. सो हमारा 3rd भी कट गया. सो ऑप्शन नंबर 4.
ठीक है, डी हमारा सही हो जाएगा। सो टिम बर्नर्स ली ने दिए वर्ल्ड वाइड वेब, फ्रिड कोहेन ने वायरस का कॉन्सेप्ट दिया था, चार्ल्स बैबेज इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एंड जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर दिया था। क्वेश्चन 9 अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग, नेम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, name of a CPU manufacturer, link web pages and brain of a computer। सबसे इजी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज CPU, बी का सेकेंड, लो एक से ही निकल गया आंसर, फर्स्ट भी कट, सेकेंड भी कट और थर्ड भी एलिमिनेट। सो नेम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड, name of a CPU manufacturer Intel, link web pages www that is world wide web, और अभी पीछे पड़ा किसने दिया था, टिम बर्नर्स ली ने। सो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है, सिंगल नहीं दिया है कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है, उन्होंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको उसको करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। अब देखिए हमने तीन ही नंबर सिस्टम्स पढ़े हैं, ठीक है, दैट इज डेसिमल, सॉरी 4 पढ़े हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्सा, ठीक है। लेकिन मैम यहाँ पे देखिए ना बेस 4 दिया हुआ है, तो वो कैसे सॉल्व होगा, बेस चाहे कुछ भी दिया हो, ठीक है, चाहे 5 दिया है, चाहे 6 दिया है, चाहे 7 दिया है, 8 दिया है, कुछ भी दिया है। अब आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, और फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। चलिए फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें दिया है जो ए ऑप्शन है, इट इज 10110 10110.11 क्या करना है बताया था, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4। यहाँ पे 2 raised to power -1 and 2 raised to the power of -2, ये जो जीरो वाले हैं ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना बचेगा, 2 + 4 + 16, ये कितना है 1/2। मैंने आपको बताया था 2 की पावर -1 का मतलब क्या है 1/2, ठीक है। 2 की पावर -2 का मतलब क्या है 1/2 का स्क्वायर। सो 1/2 इज हाफ विच इज 0.5 एंड 1/2 का स्क्वायर 4, 1/4 इज 0.25। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ 0.5 + 0.25, ठीक है। 16 + 4 + 2 22.75। सो 22.75 हमारे ए का आंसर आया। अब बी क्या है 110.2 बेस 4, बी क्या है 110.2, ठीक है, बेस कितना है 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर 0, जो बेस है ना आपने वो वाला बेस उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स। सो 4 की पावर 0, 4 की पावर 1 एंड 4 की पावर 2, और यहाँ पे क्या आएगा 4 की पावर -1। अब देखिए अगेन ये 0 वाला कैंसिल, 4 की पावर 1 इंटू 1 इट इज 4 + 16 पॉइंट। अब देखो ये चीज जो है ना ये कैसे सॉल्व होगी, इट इज 2 × 4 की पावर -1। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 4 की पावर, जैसे 2 की पावर -1 1/2, 4 की पावर -1
1/4। जब आप इसको कैंसिल करेंगे ये कितना आएगा, अगेन 0.5, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5। तो 16 + 4 इज 20, 20 + 0.5 कितना आएगा, 20.5। हमारा बी कितना आया, 20.5। ठीक है, अब सी को सॉल्व करते हैं। सी है हमारा 32.5 बेस 8, 32.5 बेस 8, फिर से 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 0.8 की पावर -1। So anything raised to the power of 0 is 1. So 2 into 1 is 2 plus 8 3 is 24. Point, ये कितना आएगा, 5/8। तो 5/8 हमारा बनता है 0.37। 0.37 बनता है ना। गलत कर दिया ना, 62। 0.62। सो ये कितना आएगा हमारा, 26.62। और डी हमारा है 14.6 बेस 16। डी क्या है हमारा, 14.6 बेस 16, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 0.16 की पावर -1। यह आ जाएगा 4 + 16। और ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैसे आएगा हमारा, 6 × 1/16, 3/8। सो 3/8 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 3/8 0.37। So this will be 20.37। ठीक है, सारे सॉल्व किए हमने। अब देखो हमारा ए आया था 22.75, हमारा बी आया 20.5, हमारा सी आया 26.62 और हमारा डी आया 20.37। अब हमें क्या लगाना था, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, छोटे बड़े से छोटा डिसेंडिंग। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, सी, फिर ए, फिर बी एंड डी। सो CABD, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आप एक बार इसको खुद सॉल्व कीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, कोशिश की है मैंने कि आपको ये चीज समझ आए। इन केस अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन 11, WiMAX stands for, अगेन एब्रीविएशन क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज वर्ल्ड-वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 12, पोस्ट इज परफॉर्म्ड बाय, अनटिल एंड अनलेस आपको पोस्ट की फुल फॉर्म नहीं पता है आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पोस्ट इज परफॉर्म बाय बायोस। ठीक है, बायोस हमारा पोस्ट परफॉर्म करता है। देखिए पोस्ट क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट एंड पोस्ट इज रन बाय बायोस। कब, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं टू चेक द हार्डवेयर, यानी जो हमारा रैम है वो काम कर रहा है, कीबोर्ड जो है, माउस जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, इसलिए जो हमारा बायोस है वो पोस्ट टेस्ट रन करता है। एंड बायोस, बायोस की भी एक फुल फॉर्म होती है विच इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
ठीक है। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो एक स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए यूज होते हैं, ठीक है, जैसे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, पीपीटीज बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ठीक है, एक्सेल शीट के लिए हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, प्रोसेसिंग के लिए वर्ड प्रोसेसर है। सो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या है हमारा? इट इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर, इट इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर, इसलिए इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन 14, मैच द फॉलोइंग, MICR, OCR, OMR, बारकोड रीडर। देखिए सबसे इजी है इसमें, रीडिंग द नंबर्स फाउंड ऑन द बैंक चेक, MICR। ए का थर्ड, ठीक है, दो ऑप्शंस निकल गए। रीडिंग मार्क्स रिटन यूजिंग पेंसिल और पेन ऑन अ स्पेशली प्रिंटेड पेपर, OMR शीट्स जो हम फिल करते हैं एग्जाम के टाइम में, सी का फोर्थ, थर्ड भी कट गया। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए पीछे MICR, OMR, OCR, मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, या फिर कहीं कहीं पे आपको ये रिकॉग्निशन भी मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज OCR। तो OCR क्या है हमारा? रीडिंग द कार नंबर प्लेट्स एंड बारकोड रीडर, कि जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जो बारकोड स्कैनर होता है प्रोडक्ट्स के पीछे, ठीक है, दैट इज बारकोड रीडर। क्वेश्चन 15, which of the following is a type of malware embedded in a computer that set off a malicious function when certain conditions are met? ये कीवर्ड है, when certain conditions are met, that is logic bomb, ठीक है। कुछ लॉजिक अप्लाई करते हैं कि अगर जो यूजर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो कीबोर्ड पर जैसे ही से स्पेस बार दबाएगा तो वो वाला जो मैलिशियस प्रोग्राम है वो कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देगा। तो जैसे ही जाने जाने में यूजर को तो नहीं पता ना कि उसके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस है, तो वो जैसे ही स्पेस बार दबाएगा तो वो जो क्या बोलते हैं कंडीशन है वो मेट हो गई एंड लॉजिक मॉब जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आपने देखा है वो मूवीज में देखा होगा, टाइपराइटर होता था, वो पेपर के साथ उसकी जो एक बैंड होता था, हेड होता था, वो टक 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 आवाज करता था, दैट इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? जो लेजर का यूज करता है। सो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हमारे प्रिंटर्स जो होते हैं ना, उनकी दो क्लासिफिकेशंस होती हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। आपको पता होना चाहिए इम्पैक्ट में कौन से आते हैं और नॉन इम्पैक्ट में कौन से आते हैं। क्वेश्चन 17, डैश अलाउज अ यूजर टू शेयर आइडियाज, एक्टिविटीज, इंटरेस्ट एंड इवेंट्स अमंग द पीपल। ये तो आप सबको पता होगा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 18, व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग क्या होता है? when someone sends legitimate looking emails to users, ठीक है, होते वो फ्रॉड्स हैं, इट इज अ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, ठीक है, फिशिंग इज अ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। जो पुरानी क्लासेस है ना उसमें ये एक PYQ था जिसका आंसर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी था। सो इट इज अ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। लगता है कि जो हमें ईमेल आया है वो एक लेजिटिमेट वेबसाइट से आया और ऑथेंटिक वेबसाइट से आया, बट होता क्या है वो एक्चुअली में फ्रॉड होता है। सो दिस इज फिशिंग।
नाउ दीज आर द 18 क्वेश्चंस हमारे आज के क्लास के, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आए होंगे अच्छे से और आपने नोट्स बनाए होंगे इसके। जाने से पहले मैं आपको एक 19th क्वेश्चन देके जा रही हूँ, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। Arrange the following in correct ascending order after converting them into डेसिमल नंबर सिस्टम। एक क्वेश्चन मैंने करवाया, अब एक क्वेश्चन आप एज होमवर्क लेंगे और आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। ए है हमारा बेस 2, बी है 102.3 बेस 6, सी है 42.5 बेस 8 और डी है 32.6 बेस 16, ठीक है। आप ये सॉल्व करेंगे और आप मुझे इसका आंसर कमेंट द आंसर बिलो। Now this is the part 5 of our PYQ series we have started for the unit of ICT which is Information and Communication Technology. I hope जो पहले के 4 पार्ट्स है वो आपने जरूर देखे होंगे। In case you have not seen it or you have skipped it तो प्लीज उनको जाके जरूर देखिएगा। Question number 1 says match the following motherboard BIOS, CMOS and HTTP और ये उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है। हमें पता है कि जो HTTP है it is used to convert the web pages into web browser for viewing. So D का थर्ड, जब D का थर्ड किया हमने तो हमारे 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। देन वी हैव मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? इट अलाउज द प्रोसेसर एंड अदर हार्डवेयर टू फंक्शन एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। ए का सेकेंड, ठीक है, दोनों में गिवन है ए का सेकेंड। हमें और आगे जाना पड़ेगा। बायोस, हमें पता है कि इट इनिशियलाइजेस एंड टेस्ट द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स की जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स है वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड व्हेन इट गेट्स अ सिग्नल कि हमारे जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है जैसे हमारा माउस हो गया या हमारा कीबोर्ड हो गया, ठीक है, दे आर फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो ऑन हो जाता है। सो बी का फोर्थ, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। और एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि आज के सेशन में आपको सिर्फ मैच द फॉलोइंग के ही क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट के, अलग अलग ईयर्स के। और इससे आपके क्या होगा, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे, आपको पता लग जाएगा कि आप किस कंसेप्ट में वीक है या आपको कौन सा कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। तो आज की क्लास जरूर अच्छे से अटेंड कीजिएगा। नाउ यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें हैं, बायोस, CMOS and HTTP. BIOS is basic input output system. CMOS is complementary metal oxide semiconductor, and HTTP is hypertext ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये जो दोनों है ना फुल फॉर्म से आपकी PYQ रह चुकी हैं, दोनों बायोस भी और CMOS भी। So our answer is option number 3.
क्वेश्चन 2, ब्राउजर HTTPS URL एंड कुकी। हमें पता है URL इज द टेक्स्ट बेस्ड वर्जन ऑफ वेब एड्रेस। ठीक है, जब भी हमें वेब एड्रेस का पता करना होता है हम URL देखते हैं। सी का फोर्थ 3 जगह पे है। ठीक, HTTPS अभी हमने पढ़ा था, इट इज अ प्रोटोकॉल विच इज यूज टू सेंड द डेटा। बी का 1, B1। ठीक है, देन ब्राउजर इट अलाउज the viewers to view the web pages। A का 3, so option number D हमारा करेक्ट हो जाएगा। and URL stands for यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, पॉपअप स्पैम कुकीज ब्लॉक। स्पैम पता है मैम, अनवांटेड ईमेल्स। हम पढ़ते हैं ICT में, स्पैमिंग इज अनवांटेड ईमेल्स, सॉलिसिटेटेड अनवांटेड ईमेल्स। ठीक है, कुकीज हमें पता है कि जो हमारी इंटरनेट की ब्राउजिंग एक्टिविटी को स्टोर करके रखता है। सो सी का फोर्थ एंड बी का 1, B1 C फोर्थ। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन पॉपअप्स, ठीक है, जो स्मॉल स्क्रीन ओपन होती है जब आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, वो छोटी छोटी साइड में पॉपअप एड्स जैसे हम बोलते हैं। सो दीज आर द स्मॉल स्क्रीन्स दैट ओपन ऑटोमेटिकली। एंड देन वी हैव ब्लॉग। ब्लॉग क्या हो गया हमारा? ऑनलाइन जर्नल शेयर्ड ओवर इंटरनेट। क्वेश्चन 4, ये कंपोनेंट्स दिए ईमेल के, ठीक है, कार्बन कॉपी, ईमेल सिग्नेचर, एड्रेस बुक एंड फाइल अटैचमेंट, और उसके डिस्क्रिप्शंस दिए हैं। सबसे इजी क्या है? हमारा एड्रेस बुक। ठीक है, allows to store contact details। सी का फोर्थ, चलो एक ऑप्शन गया। ठीक है, प्ले विद द ऑप्शंस, मैंने आपको बताया एलिमिनेट टेक्निक यूज कीजिए। देन allows to send same email to more than one, it's a carbon copy। ए का सेकेंड मिल गया ना, ऑप्शन नंबर बी। देन मैं चेक करती हूँ, हाँ ऑप्शन नंबर बी। Then email signature, it allows you to add personal data, and file attachment is used to send photograph with your email। क्वेश्चन 5, ये डिजिटल इनिशिएटिव्स आपको दिए हैं, ठीक है, और उनका डिस्क्रिप्शन दिया है, आपको मैच करना है। ज्ञान, इम्प्रिंट, डिजिलॉकर एंड स्वयं। जहां पे वेरिफिकेशन और इशुएंस की बात आती है, डिजिलॉकर। सी का फोर्थ, ठीक, 2 ऑप्शंस कट हो गए। और स्वयं हमें पता है इट इज यूज टू अचीव 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। डी का सेकेंड, और उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ज्ञान इज ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। ठीक है, दीज ऑल आर द डिजिटल इनिशिएटिव्स। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक क्लास लूँ डिजिटल इनिशिएटिव्स पे, ठीक है, तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मैम हमें एक क्लास चाहिए डिजिटल इनिशिएटिव्स पे, तो मैं आपके लिए क्लास ले लूंगी। देन इम्प्रिंट इज इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंड स्वयं इज स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये जो फुल फॉर्म है ये PYQ रह चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ट्रैपडोर, टाइम बॉम्ब, पॉलीमॉर्फिक वायरस एंड मैक्रो वायरस। ठीक है, हमें पता है टाइम बॉम्ब का, हमें पता है कि जब कोई स्पेसिफिक टाइम होगा तब वो टाइम बॉम्ब एक्सप्लोड होगा। ठीक है, बी का फोर्थ, 2 कैंसिल हो गए। देन अब देखिए मैं आपको एक मतलब कैसे आप ना वर्ड्स के साथ खेल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको इन तीनों में कंफ्यूजन हो रहा है, आप लिस्ट 2 पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोड्यूसेस वेरिंग, बट वेरिंग, वेरिंग का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। और पॉली का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। ठीक है, सो सी
को आप 1 से मैच कीजिए, और अब जैसे ही सी को 1 से मैच करेंगे, ओके ये दोनों में ही दिया है, ठीक है। देन ट्रैप डोर, code that allows unauthorized quick access at a later time, it is a trap door। एक सेकेंड, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर नहीं कुछ समझ आता ना, आप वर्ड्स के साथ खेलिए। जैसे पॉली का मतलब मल्टीपल, और वेरिंग का मतलब क्या होता है, जो अलग अलग वेराइटीज अलग अलग फॉर्म्स लेता रहता है, यानी मल्टीपल फॉर्म्स लेता है, तो आप वैसे उसको मैच कर सकते हैं। देखिए ट्रैपडोर क्या है, एक हिडन कोड होता है विच अलाउज समवन टू बाईपास सिक्योरिटी या फिर गेन द लेटर एक्सेस। देन पॉलीमॉर्फिक, विथ चेंजेस इट्स कोड विथ ईच इन्फेक्शन, हर एक इन्फेक्शन के साथ, मतलब वो जिस कंप्यूटर को हैक करता है या जिस कंप्यूटर सिस्टम को वो इन्फेक्ट करता है, उसके बाद वो अपना जो वो है रूप है, जो अपना फॉर्म है वो चेंज कर लेता है, तभी उसको पॉलीमॉर्फिक बोला गया है। Macroviruses, they are written in macro languages like those used in MS Word or Excel. They are interpreted by the application and not directly executed by operating system. Question number 7. Again malwares दिए हमें, Trojan horse bomb, logic bomb and rootkit, ठीक है। लॉजिक बॉम्ब, टाइम बॉम्ब हमें पता है कि जब एक स्पेसिफिक कंडीशंस मेट होती हैं। सी का सेकेंड, एक ही से निकल गया, ये कट हुआ और ये भी और ये भी, सो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो ट्रोजन हॉर्स, इट लुक्स लाइक अ लेजिटिमेट प्रोग्राम बट कैरीज हिडन मैलिशियस मालवेयर। देन वॉर्म, इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर, ठीक है, उसको किसी होस्ट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वायरस को प्रोपोगेट होने के लिए होस्ट की जरूरत होती है। लॉजिक बॉम्ब, जब तक कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस मेट नहीं हो जाती हैं, ये आपके सिस्टम को हार्म नहीं करेगा। रूटकिट, इट इज डिजाइन टू हाइड द प्रेजेंस ऑफ मालवेयर बाय मॉडिफाइंग द ओएस लेवल। तो ये रूटकिट, रूट मतलब जड़ में जाके, सो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ही मॉडिफाई कर देता है, ताकि आपके सिस्टम में डिटेक्ट ही नहीं होता कि मालवेयर आया है कि नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 8, example of high level programming language is Java। A का 3, चलो अब देख रहे हैं मैच द फॉलोइंग में, अगर आपको एक या दो भी पता है ना, तो आप कितनी आसानी से एजुकेटेड गेस भी लगा सकते हैं। अगर दो आपके दो ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो जाते हैं, तो आप थोड़ा सा गेस वर्क करके, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करके ना, आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। नाउ नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमें पता है कौन सी है, रोम है। Computers used by airline companies to handle the large amount of data, it is mainframe। And the type of network where computers are connected within a home or a company is local area network। So LAN is local area network, okay, and ROM is read only memory, and it is non volatile। नॉन वोलेटाइल का मतलब कि अगर आपका सिस्टम बंद भी हो जाएगा, तो जो डेटा है वो उड़ नहीं जाएगा, वो डेटा सेव हो जाएगा। सो दैट इज रोम, ठीक है, दैट नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट कैन बी read but not written to। Question number 9, the speed of a CPU is measured in hertz, और उसको हम क्या बोलते हैं, बता सकते हैं कोई मुझे? एक का सेकेंड, एक का सेकेंड, ठीक है, आंसर नंबर डी। हमारे 3 ऑप्शंस कट हो गए। Now, storage capacity of data is measured in bytes। हमने पढ़ा है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ठीक है। Network bandwidth is measured in bits per second, and the size of a computer diagonally अगर देखा जाए तो it is measured in inches। एक यहाँ पे है कि speed of CPU is measured in
हर्ट्ज, और इसको एक नाम दिया जाता है विच इज नोन एज क्लॉक स्पीड। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 10, मॉडेम, रूटर, एनआईसी एंड रिपीटर। मॉडेम सबसे इजी है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, ए का फोर्थ। ठीक है, ये हमारे दो कैंसिल हो गए। देन रिपीटर टू रीजेनरेट सिग्नल्स, डी का 1। ठीक है, दोनों में डी का 1 दिया है। देन रूटर एंड एनआईसी, एनआईसी इज रिलेटेड टू द फिजिकल एड्रेस, सी का सेकेंड। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। NIC is नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या फिर कंट्रोलर भी अगर आ जाए तो गलत नहीं है। ठीक है, सो इट इज यूज्ड टू कनेक्ट ऑल द गैजेट्स विद द नेटवर्क। ठीक है, एंड अ फिजिकल एड्रेस विच इज ऑल्सो नोन एज हार्डवेयर एड्रेस is unique identifier assigned to each NIC। इसीलिए जो हमारा NIC है वो हमारा फिजिकल एड्रेस के साथ एसोसिएट हुआ है। रूटर, इट इज अ फंडामेंटल डिवाइस, ठीक है, बिकॉज इट अलाउज द कनेक्शन ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस एंड एक्सेस टू द इंटरनेट। अब क्योंकि हमारा इंटरनेट है, ठीक है, हम जब हम नेट यूज करते हैं, ठीक है, तो हमारे डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो रूटर है हम उसको आईपी एड्रेस के साथ एसोसिएट करेंगे। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं था, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। दिस वाज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। जिसको पता होगा कि रूटर हमारा इंटरनेट के डिवाइसेस के लिए यूज होता है, उसे पता होगा कि इंटरनेट पे आईपी एड्रेस यूज होता है। जिसको पता होगा कि एनआईसी हमारे डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है, डिफरेंट गैजेट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, जहाँ पे हमारा फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस यूज होता है, तो वो उसको फिजिकल एड्रेस के साथ वो मैच कर देगा। क्वेश्चन 11, वेब 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आया है। ठीक है, शायद मैंने लास्ट क्लास के उससे लास्ट क्लास में करवाया था, और मैंने उसमें आपके शायद 5 to 6 क्वेश्चंस जनरेशंस ऑफ वेब के करवाए थे। ये जनरेशंस ऑफ वेब है। तो आप ये प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12, देखिए फिर से आ गया पॉलीमॉर्फिक, मेटामॉर्फिक। वहां पे क्या था, मैक्रो वायरस, यहाँ था मेटामॉर्फिक वायरस। आप देख रहे हैं कि आपको मतलब मैच ऑफ द फॉलोइंग से कितने सारे कॉन्सेप्ट्स मिलते जा रहे हैं। जो भी आपको न्यू लग रहा है ना, प्लीज उसको नोट डाउन करते रहिए। एक एक लाइन का ही है सब कुछ मैंने दिया हुआ है, तो प्लीज। देन ट्रोजन हॉर्स एंड वॉर्म, देखिए चेंजेस इट्स सिग्नेचर विद ईच कॉपी। अभी मैंने आपको बताया था पॉलीमॉर्फिक, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये दो कट गए। Then malware that spread copies of itself without user interaction is worm, D का 3। ठीक है, D का 3 दोनों में दिया है। Then seemingly useful program that contains hidden Trojan horse, C का 1। So option number C हमारा करेक्ट हो जाएगा। And then we are left with metamorphic. So metamorphic is completely rewrites itself each time it is replicated, sometimes changing its behavior. Question 13, eavesdropping, snooping, grey hat hacker and Trojan। Trojan हमें पता है, it looks like a legitimate software, D का 1, D1। ऑप्शन नंबर 2 और 4 हमारे कैंसिल हो गए। हमें पता है कि जो हैकर होता है ना, वो सिस्टम को हैक करता है। ठीक है, ग्रे हैट हैकर, C का 2, ऑप्शन नंबर 1।
eavesdropping is unauthorized real-time interception and snooping is the process to capture secret. So हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। 14 सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं और उनके एग्जांपल्स दिए। सुपर कंप्यूटर हमारा क्रे 1 है, ए का 4th, चलो एक से ही आ गया। तो देन B1 मेन फ्रेम, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, एक एक एग्जाम्पल याद रखिए। C3 मिनी कंप्यूटर इज PDP 2nd एंड माइक्रो इज IBM PC। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 FTP, पिंग, HTML एंड HTTP, ठीक है। आपको पता है आप सोशल मीडिया पे जैसे किसी को पिंग करते हैं, अब वो क्यों करते हैं? टू चेक कि वो पर्सन अवेलेबल है या नहीं है। सो पिंग, इट इज अ मैसेज सेंड टू चेक इफ द सर्वर इज डाउन। बी का सेकंड आते ही कैंसिल हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। FTP फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए काम आता है, ठीक है। HTML वेब पेजेस क्रिएट करने के काम आता है और HTTP एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। FTP HTML और HTTP पीछे मैंने आपको बताया। FTP इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नाम से पता चल रहा है कि ये जो प्रोटोकॉल है इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द फाइल्स ओवर इंटरनेट। HTML इज hypertext markup language, okay, and it is used to create web pages. So this is FTP and HTML. Question 16 ब्रिज, राउटर, गेटवे, इथरनेट, ठीक है। ये हमारे क्या है? नेटवर्क डिवाइसेस हैं और ये उनकी डिस्क्रिप्शन है। देखिए गेटवे क्या होता है? तब गेटवे किसको बोलते हैं? एक ऐसा इंसान जो सबको अलाउ नहीं करता, ठीक है, मतलब वो फिल्टर कर ही अंदर भेजता है लोगों को, ठीक है। So gateway it serves as an entry and exit point of a network. C का 3, 2 कैंसिल हो गए। ब्रिज हमें पता है इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट वन लैंड टू अदर लैंड। ए का 4th, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत बेसिक की पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये इनके आप बोल सकते हैं फीचर्स हैं, तो आपको इनको नोट डाउन करना है। इन केस आपने अगर नहीं कहीं पर लिखा है तो प्लीज ये शॉर्ट नोट्स में ऐड कीजिएगा। देन रूटर, इट इज अ डिवाइस दैट कैन रिसीव द डेटा, एनालाइज इट एंड ट्रांसमिट इट, एंड इथरनेट आर द सेट ऑफ रूल्स दैट डिसाइड हाउ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस कनेक्ट विद ईच अदर। क्वेश्चन 17 ransomware, spyware, worm and trojan, ठीक है। Software that monitors or records small piece of code that misleads user of its true intent, यानी वो appear कैसा होता है? legitimate, पर होता कैसा है? वो malicious, it is a trojan। D का 2nd, ठीक है। 2 हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। देन a piece of code that replicates itself, worm। C का 4th, so ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन ransomware, आपको पता है कि जब हैक होता है तो वो आपसे पैसे मांगते हैं, ठीक है, कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है, तो वो आपको पे करना पड़ता है पैसा, ताकि वो आपको उसका एक्सेस दोबारा से दे सके। एंड स्पाईवेयर, जो आपके ऊपर निगरानी रखते हैं, स्पाईवेयर। So option number D. Question 18.
CPU, मॉनिटर, रैम एंड हार्ड डिस्क। ठीक है, CPU मॉनिटर हमें पता है कि इट डिस्प्लेज द विजुअल आउटपुट। बी का फोर्थ, B4। CPU इट प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, A का 3 दोनों में दिया है। RAM, does it store the data temporarily or permanently? It stores the data temporarily। C का 1। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो हमारी हार्ड डिस्क है वो परमानेंट स्टोर करती है, इसलिए हम रैम को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर वोलाटाइल मेमोरी। रोम हमारी नॉन वोलाटाइल है। क्वेश्चन 19, इंटरनेट ऑफ कंटेंट, पीपल, थिंग्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमें पता है इट इज अ स्मार्ट वॉच। ठीक है, जो सेंसर्स के थ्रू यूज होता है, जो आपको हर एक चीज डिटेक्ट कर सकता है, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सी का सेकेंड, चलो एक से ही मिल गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। दिस इज ऑप्शन नंबर डी। देन इंटरनेट ऑफ कंटेंट, लाइक सर्चिंग ताजमहल ऑन गूगल। इंटरनेट ऑफ पीपल, सोशल मीडिया। ठीक है, लाइक हमारा FB हो गया, हमारा इंस्टा हो गया, हमारा एक्स जिसको हम पहले ट्विटर बोलते थे, वो सब। एंड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 20, वॉर्म, बॉट, डिनायल ऑफ सर्विस एंड फार्मिंग। वॉर्म, आप देख लो वॉर्म कितनी बार आया है, कितना ज्यादा रिपीट हुआ है। सो ए का सेकेंड, malware that replicates itself in order to spread। ए का सेकेंड, ये एक से ही निकल गया। देन बॉट, it is a malware that responds to external commands by the attacker। denial of service, that is flooding the sites। ठीक है, ताकि जब भी कोई यूज करे तो वो क्या दिखाए, साइट डाउन या क्रैश, साइट क्रैश हो गई है, ऐसा कुछ। देन फार्मिंग, फार्मिंग इज misdirecting the users to fraudulent website without their consent। 21, we have tuning, morphing, rendering and virtual reality। सबसे इजी सबको जो पता होगा, दैट इज वर्चुअल रियलिटी, दैट इज क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। देन मैं आपको देखो, आपने वर्ड सुना मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, छेड़छाड़। ठीक है, एंड इट इज यूजुअली यूज्ड इन कंप्यूटर सेंस ओनली, कि आप जब किसी इमेज के साथ छेड़छाड़ करते हो। ठीक है, या फिर आप बोलते हो टैम्परिंग करना, टैम्परिंग, इमेज टैम्पर करना, यानी कुछ छेड़छाड़ हुई है। सो मॉर्फिंग, द प्रोसीजर वे वन इमेज इज चेंज्ड इनटू अनदर इन अ स्मूथ वे, किसी को पता ना चले। बी का 1, बी का 1। ट्यूनिंग, फ्रेम्स के बीच में। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कि मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, ट्यूनिंग का मतलब क्या है, प्रोसेस टू क्रिएट इंटरमीडिएट फ्रेम्स बिटवीन द टू की फ्रेम्स, गिविंग द इल्यूजन दैट फर्स्ट इमेज स्मूथली ट्रांसफॉर्म्स इनटू सेकंड। ये यूजुअली हमारे एनिमेशन में यूज होते हैं, एनिमेशन में। ठीक है, जो स्टिल इमेजेस होती है ना, टू कन्वर्ट still images into moving images, we use tuning concept। Then morphing, where one image is smoothly changed into another, and rendering is the process of generating a final image from 2D 3D model using a computer software। ठीक है, rendering from a model, और ट्यूनिंग मैंने आपको बता दिया की फ्रेम्स वाला।
So option number D. Question 22. Swayam Prabha, Shark Tank, Krishi Darshan and Shaktiman. Krishi Darshan एग्रीकल्चर प्रोग्राम, सी का सेकेंड, 3 ऑप्शंस सीधा सीधा कर. स्वयं प्रभा इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम, शार्क टैंक बिजनेस रियलिटी टीवी शो एंड शक्तिमान इज किड्स प्रोग्राम. सो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन 23. डेटा कंप्रेशन, इंक्रिप्शन, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन एंड डिस्क फॉर्मेटिंग. देखिए, जब हम ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन लेट्स से हमारा इतना था, हम कंप्रेस करते हैं ताकि वो इतनी ही स्पेस ले. सो दिस इज कंप्रेशन. ठीक है, ये क्या है हमारा कंप्रेस. हम बोलते हैं ना हमने कंप्रेस कर दिया, हमने फाइल का साइज डिक्रीज कर दिया. सो एनकोडिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग फ्यूअर बिट्स, ये हमारा आ जाएगा डेटा कंप्रेशन. एक सेकेंड, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट. देन स्क्रैम्बलिंग, एनक्रिप्शन इज स्क्रैम्बलिंग, ये आप कम्युनिकेशन में भी पढ़ते हैं. बी का 3. ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. देन डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, attempt to create larger regions, and disk deformatting is preparing of data storage device for initial use. Question 24. Yahoo, Firefox, Solitaire, Quillbot. Solitaire गेम मैंने भी बहुत खेली है, ताश वाली गेम होती है. सो सी का 4th. ठीक है, हमारा 3rd और 4th एलिमिनेट हो गया. देन Quillbot, पैराफ्रेजिंग टूल, डी का सेकेंड, डी का सेकेंड. सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, याहू इट इज अ सर्च इंजन and Firefox is a web browser. So that was all for today's class. ठीक है, जितने भी मैच द फॉलोइंग के कॉन्सेप्ट्स थे रिसेंट ईयर्स में जो पूछे गए थे, ठीक है, आई हैव ट्राइड टू इनकलकेट देम इन वन क्लास ताकि आपको पता लग सके कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस तरीके से रिपीट होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स की उसको ज़रूरत है. So these are the social media handles of JC Academy. Connect to them to keep yourself updated. Thank you so very much. I hope आपको क्लास पसंद आई होगी and do share it with your friends. Until the next class, bye bye, take care and happy learning.